across our country's cinematic landscape. It's an honor to have you join us today as we shine a spotlight on voices that are reshaping our cinematic narrative. From inspiring filmmakers to filmmakers we aspire to be, these new directors are crafting wonderful stories and filmmaking techniques that evolve Pakistan's cinema industry. These emerging directors bring fresh perspectives, untold stories, and boundless creativity to the forefront of our industry. From diverse backgrounds and experiences, each director on our panel offers a unique lens through which to view the world. Their stories resonate with incredible authenticity. It is our pleasure to introduce the moderator for today's panel discussion on the next generation of Pakistani directors. Making an explosive entry into the Pakistani film industry as an assistant director for not one, but two of Pakistan's official submissions for the Academy, Cake and Lal Kabutar. She has worked in Barzakh, Chudails, holding varying roles, has directed commercials and music videos, and worked with top directors across all platforms. Please join us in welcoming Zubia Anwar. Next up is a director known for his quirky visuals and offbeat humor, stop motion animator and director Salman Nurani. Making films and ads that challenge conventional ways of storytelling, making films that touch the universal human experiences. Please welcome Taha Karim. His recent short film Murder Tongue has screened in more than 60 international film festivals around the world and international awards in and won international awards in A-list festivals including Miami Film Festival. Please welcome Ali Sohail Jora. And last but definitely not least, his new drama, Bans Road Ke Romeo Juliet, challenged conventional norms for television screens. His contributions span from cinema to television. Please welcome Fajar Raza. Now we will hand this talk over to Zubia Anwar. Hello? Okay, all right. Before I get to the questions, just a little bit of a forward. When it comes to filmmaking, the entire process from that first action to that last cut is about bringing the director's vision to life. But if I speak honestly, it is not something that starts there or is limited to that. फिल्म बनती है पहले आपके जहन में कहीं and then after numerous writes, rewrites, thinking, cultivating and forming that film into something that can even be called a film is when you get to the process of actually trying to make it. और फिर hopefully budgets मिल जाएं, approvals आ जाएं और वो सब कुछ हो जाए तो आप pre शुरू करते हैं. Pre में भी कई सारी meetings, discussions, trials, recce's, PPM, pre-PPM, pre-PPMs के बाद कहीं जाके हम शूट पे पहुंचते हैं. शूट पे हाँ सही है, एक्शन होता है, कट होता है, लेकिन कहानी वहाँ भी ख़त्म नहीं होती. एंड वी गेट टू द पोस्ट, जहाँ पे अब उस फिल्म को काट पीट के उसके साथ एडिट, ग्रेड्स, VFX, साउंड, वॉट नॉट कुछ करके एंड में कोई एक प्रोडक्ट बनता है जो कि होती है हमारी फिल्म. अब ये सारी जो मैंने बातें की, दे साउंड लाइक बहुत सारा काम होता है, लेकिन इस सारे काम को करते हुए वो जो डायरेक्टर्स विजन होता है उसको सलामत रखना और उसको सामने वापस उस फिल्म के एंड में स्क्रीन पे पहुंचाना, दैट इज़ अ फीट ऑन इट्स ओन. एंड ऑल ऑफ माई फेलोज हियर, I know that they have gone through this rigorous process 100 times over or maybe more times than that. And so I welcome you all and let's begin. Okay, so I'm just
to give you guys a sense, I'm not really posing questions particularly to one of you or anything like that. So let's have an open discussion. My first question would be, what do you think is the one thing to you as a film student that led you to cement your position in the world as a director now? Fajr, if you would begin. Can you repeat the question? Is it working? Hello? So what to you is the one thing you did as a film student, जब आप student थे, जिसने अब आपकी position as a filmmaker cement की है? अच्छा, बेसिकली यही है, हम बात कल भी कर रहे थे। जो गलती मुझे नज़र आती है कि मोस्टली हम गलती करते हैं ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ, वो ये करते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना उन्होंने यही सोचा होता है कि वो डायरेक्टर हैं शुरू से, और सिर्फ अपने जहन में सोचा होता है, या तो डायरेक्टर सोचा होता है, कुछ भी सोचा होता है, वो अपने जहन में सोचा होता है, और वो वेट कर रहे होते हैं ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट में निकलेंगे, फिर काम करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है ऐसे इस तरह से काम नहीं होता। बेसिकली एक डायरेक्टर कह लें या एक डीओपी कह लें, दीज आर पोजीशंस, सही, एक तरह से ये ओहदे हैं जो लोग देते हैं आपको। तो अगर कोई ओहदा आपको दे रहा है तो उसका आपको डायरेक्टर समझना ज़रूरी है, सही है। आप भले बहुत क्रिएटिव होंगे, बट आपके अराउंड जितने लोग हैं, अगर आपको वो डायरेक्टर समझना शुरू हो गए, या आपको वो डीओपी समझना या डायरेक्टर समझना शुरू, वहीं से जर्नी शुरू होती है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ या स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ाना की बेसिस पे आपके पास 150-200 लोग, एटलीस्ट 250 लोग होते हैं जिनसे आप रोज़ाना की बेसिस पे मिल रहे होते हैं। आप अपना एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में डेली बेसिस पे उतने लोग में भी शायद आपको ना मिलें, बट आपको यहीं से खुद ये डिसीजन लेना होता है कि आप डीओपी हैं, आप आर्ट डायरेक्टर हैं, आप स्टाइलिस्ट हैं, वो जो भी है, वो यहीं से आई थिंक एक परसेप्शन क्रिएट आप खुद से भी नहीं करते हो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज या आप जिस तरह से काम करते हो, वो लोग उस तरह से परसीव आपको करना शुरू हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है। If anyone of you would like to add to that? हेलो ओके, सो अच्छा, मेरा थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट सा स्टार्ट था। मैं क्योंकि इनिशियली मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, उसका रीज़न ये कि मेरी ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छी थी, मैं मैथ्स में भी अच्छा था। सो समहाउ मुझे पता नहीं क्यों ये फील्ड बहुत अच्छी लगी। मैंने सिलेबस देखा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, आई गॉट इनटू इकरा, और बाय द टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद जो मेरे टीममेट्स हैं, जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, जब कोई प्रोजेक्ट आता था सो मुझे कहते थे नहीं अली को डायरेक्ट करने दें, ये अच्छा लीड करता है, ये अच्छा टीम को जो है ना वो पुश करता है और अच्छी चीज़ बना देता है। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि शायद वो एक टीम लीड करना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा से करता था कि मैं कभी भी कोई काम जब आता था तो मैं बड़ा बांट देता था लोगों में, ये नहीं कि 10 काम मैं खुद कर रहा हूँ और बाकी को, तो मैं कोशिश करता था कि सब इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करें और सब अपना बेस्ट दें उसके अंदर। और ये असाइनमेंट्स के टाइम से ही ये चीज़ मेरे अंदर थी और मैं कोशिश करता था कि सब मिलकर एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करें। और यही वजह है कि मैंने अपने यूनिवर्सिटी टाइम में भी, एकेडमिक्स में भी, मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी कोलैबोरेट किया डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोजेक्ट्स में। और वहाँ पे जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी रियलाइज़ होना शुरू, और लोगों ने भी, जैसे फजर ने कहा कि लोग भी आपको रियलाइज़ करवाते हैं कि आप एक्चुअली क्या हैं या आपका ओहदा क्या होना चाहिए और आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। सो वहाँ मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने मज़ीद उसके ऊपर काम किया। दूसरी चीज़ ये कि मैंने हमेशा अपने सारे असाइनमेंट्स को बड़ा सीरियसली लिया है, और इट्स नॉट कि मैं कोई टॉपर था यूनिवर्सिटी में, कुछ भी था, लेकिन जो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट्स होते थे जो मुझे लगता था कि यार ये तो मुझे अच्छे करने ही हैं, मतलब अगर ये भी अच्छे नहीं किए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेरा यहाँ आने का। और मैं हमेशा कहीं जाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को भी ये बात कहता हूँ कि ये जो हमारी फील्ड है ना, खासकर फिल्म मेकिंग, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर माफ़ी नहीं है, मतलब क्योंकि ये वो फील्ड है जिसमें आप सब अपनी मर्ज़ी से आते हैं। कोई भी पेरेंट्स मुझे नहीं लगता जो कहता होगा बेटा जाओ फिल्म मेकिंग कर लो। सबको कुछ ना कुछ आपको एक कन्विंस करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स को बताना पड़ता है, वरना सब जो है वो यही डॉक्टर, इंजीनियर्स और बाकी डिफरेंट फील्ड्स जो देती भी हैं। बट ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपनी खुद मर्ज़ी से आते हैं कन्विंस करके पेरेंट्स को। तो यहाँ ना माफ़ी वाली सीन नहीं है, यहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना ही देना है, जस्ट नॉट टू प्रूव योर सेल्फ बट फॉर ऑल्सो द पीपल जो आप पे रिलाई कर रहे हैं, जिन्होंने आप पे ट्रस्ट करके आपको इस फील्ड में भेजा है। सो
बस मुझे यही होता था कि यार मैं जब यूनिवर्सिटी में भी हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं वो बेस्ट करूँ, कोशिश करूँ करने की अपनी तरफ से, और उसमें मेरी तो सेटिस्फेक्शन है, लेकिन एटलीस्ट जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने, उनको भी ये फील हो कि हाँ ही हैज़ चूजन द राइट फील्ड फॉर हिमसेल्फ. सो या दिस इज माई academics journey so far. So just to kind of, okay, networking during your time as a film student was something that really helped. Salman, if you would like to add to that in any way? नेटवर्किंग ऑफ कोर्स ज़्यादा जो है आपकी ग्रेजुएट होने के बाद शुरू होती है. ग्रेजुएशन से पहले मतलब मेरा ये था कि 15 साल की उम्र से शॉर्ट फिल्म्स मैं बनाते रहा था, और मुझे एम था अजीब अजीब सी कहानी बताने की. और ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी लाइफ असाइनमेंट्स हो या ना हो, मैं बस शॉर्ट फिल्म्स बनाते रहता था. एक बगैर असाइनमेंट की मैंने 40 मिनट की शॉर्ट फिल्म बना दी थी पैदल, जिसमें मैं ही सारी चीज़ें कर रहा था, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डीओपी, राइटर, साउंड भी, सिंगल कैमरा. बट उसको एडिट करने के बाद आई लर्नड अ लॉट. सो आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल टू मेक योर शॉर्ट फिल्म या कोई भी चीज़ खुद से. सारी डिपार्टमेंट्स आप खुद हैंडल कर, आपको चाहे वो बुरी भी बने, आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. और प्लस फिर जब नेटवर्किंग आती है, वो ये होती है कि ग्रेजुएट होने के बाद व्हेन यू आर फाइनली इन योर फील्ड, आप फिर नए प्रोजेक्ट्स ढूंढते हो. सो मेरा ऐसी जर्नी थी कि मैंने सिर्फ शुरू में यही था कि पहला प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से म्यूज़िक वीडियो ही थी मूरो की. मैं उससे बोला भाई प्लीज़ बनाने दो मुझे, आई विल मेक दी ऑसमेस्ट स्टॉप मोशन वीडियो. और स्टॉप मोशन प्लान नहीं था, बट था कि कुछ स्केल मज़े का बनाऊं. बट उस वक्त स्केल के लिए पैसे अच्छे खासे नहीं थे, तो आई चूज़ दिस राउट विच वाज लाइक मेरे लिए ओके था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता था स्टॉप मोशन का. फिर बाकी टीम को सिखाया. सो नेटवर्किंग ये थी कि आई न्यू थ्रू अ फ्रेंड अबाउट मूरो एंड ही लैंड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. सो या इट हेल्प्स, बट आई थिंक first when you are in your university, I think you should experiment and do as much as weird things, because university के बाद आपको कभी मौका नहीं मिलता. So yeah, फिर उसके बाद सब जज करने लग जाते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे. अभी कोई जज नहीं करेगा. जी साहब. चलिए, अच्छी बात है. थोड़ा सा मैं इसके जवाब से एग्री करता हूँ सलमान के. खैर ये अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों ने अच्छे बच्चों की बातें सुनी हैं, मैं शायद बुरा हूँ. तो अब आप बुरे बच्चे की भी स्टोरी सुन लें. सब ने अपनी स्टोरी शेयर कर ली, उसका थोड़ा सा पार्ट शेयर कर लेता हूँ. सबकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी होगी. हमारे फॉर्मूला पे आप चलेंगे तो शायद आपके लिए काम ना करे. एक रास्ता नहीं है, सही है. मेहनत भी एक रास्ता नहीं है इस काम का. बाकी बची बात नेटवर्किंग की, तो सबकी अपनी कहानी है. और कहानी से बात यही निकलती है कि सबको ना कहानी सुनाने का शौक़ है, हम चारों को. और जो पांचवी बैठी है वो भी बहुत अच्छी सुनाती है. तो आप कहानी सुनाते 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 कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा. तो आपसे ज़्यादा ना हम कंफ्यूज हैं कि ये सवाल क्या है हमारे लिए. हमें पता ही नहीं हम कब पहुँचे. तो हमें पता होता तो शायद हम उसको, और लालची लोग हैं ना, हम इसको बेहतर करते रहते, ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते. हसद लालच हमें ले जाती कहीं. कहानी सुनाते रहें, नेटवर्किंग भी हो जाती है आपकी, काम भी हो जाता है आपका, पॉलिश भी हो जाते हैं आप, और समझ भी आ जाती है. नए बंदे से मिलेंगे, नहीं पता अच्छा है बुरा है, खैर जजमेंट भी दे देते हैं हम, अच्छा बुरा. तो बात करें, सबसे बात करें, सबको कहानी सुनाएं. सबको शायद पसंद भी ना आए, तो फिर कहानी को उस तरह से फॉर्म कर लें कि सबको पसंद आना शुरू हो, काम बन जाएगा. उसी तरह से बनता है. और कोई स्कीम नहीं है हमारे पास इस चीज़ की, तो हम स्कीम नहीं देंगे आपको, ठीक है. चलें. अच्छा, एक इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में हम आंसर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि ज़्यादातर जो लोग ग्रेजुएट हो रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, सबको डायरेक्टर बनने का शौक़ होता है. इज़ दैट ऑल दैट द इंडस्ट्री और द वर्ल्ड ऑफ फिल्म हैज़ टू ऑफर? Let's do this in a quick fire way. मैं शुरू करता हूँ. सब ना हमारी फील्ड ही है, सब अच्छा दिखाना है, सही है. हीरो को हीरो दिखाना है, माशाल्लाह से उसके लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है प्रोटैगनिस्ट, सही है. तो हीरो को हीरो दिखाना है, हीरोइन को हीरोइन दिखाना है. इवन हम जो है ना वो अब तो सही है, सबका अपना तरीका है, विलन को भी बड़ा ग्लैमराइज कर देते हैं.
तो एंटेगनिस्ट उसके लिए होता है वर्ड, उसको भी बड़ा ग्लैमरस। तो आप ये बात को समझ के चलें कि आप ना एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, सही है। जो उदास है, जिसको बाहर गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, नाराज़ है, सिर्फ गाने नहीं काम करते उदासी में, फिल्में भी बहुत काम करती हैं और बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो आप, बड़ा सिंपल है, आप उसको लेके चलें और उसी तरह से ना आप, मैं सवाल भी भूल गया, सॉरी, फिर से बताओ। Is being a director as a young graduate all that the industry has to offer? सबको डायरेक्टर बनने का शौक है? सबको डायरेक्टर क्यों बनना है भाई? सही है, पैसों के लिए। पैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, रास्ता सबका अलग है। मैंने बहुत स्कीमें लड़ाई, ये भी करा, 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 जिसमें मेरी लोगों ने सुन ली और वाकई पैसे दे दिए। हम रोड के आर्टिस्ट हैं, सच बता रहे हैं। मेरा बहुत पैसों के लिए आप आए, आपकी सारी पेमेंट्स क्लियर चल रही हैं सर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको सच बता सकता हूँ, ये बेचारे रुके हुए होंगे, इनके मेरे सबसे क्लियर हैं, सबसे क्लियर हैं। और इस सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ, फिर उस पर आ जाता हूँ। आपका ना डिसिप्लिन बता देगा। आप डरते हैं, डरना नहीं है, आपको डराएंगे लोग। पोस्ट टीम भी डराएगी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अमेरिका में होगा। जब आप चले जाएंगे वहां तो बोलेंगे हम में कीड़े थे। सब डराएंगे, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, सूरज चला गया तो क्या। हमारा सिनेमेटोग्राफी के टीचर बता रहे हैं दिन में रात कैसे बनानी है और रात में दिन कैसे बनाना है। वो बोल रहे हैं सन चला गया तो हम क्या करेंगे। डरना नहीं है, सही है। तो जो हो रहा है ना, जो समझ आ रहा है वो कर लें, स्टैंड ले लें, तो वो पैसे भी इसी तरह से निकलते हैं। आपने काम सुन लिया, ठीक है, पैसे बता दें, मजदूर हैं, और फिर बता दें टाइम, और उस पर ले लें, क्योंकि काम लिया है उसने आपसे, तो उससे डरे ना। तो पैसे तो क्लियर हैं। और जो डायरेक्टर बनना है बिल्कुल बने, सही है। आप लोग हमारा कंपटीशन है, ये देखें ना, हम नुकसान कर रहे हैं 40 बंदों को बचा के, काट लेंगे आप तो वोट। तो प्रोजेक्ट चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबका काम बोलता है, सबको मेहनत करनी आती है और सब मेहनत ही कर रहे हैं। स्मार्ट कौन है, बात यहाँ पे है। तो डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर बने, डीपी बनना है, डीपी बने, जो बनना है बने। आपको लग रहा है आप हैं तो बन सकते हैं। आप अगर डाउटफुल है ना, उससे पूछ रहे हैं यार मेरा काम सही लग रहा है, मतलब हो गया काम, ऐसे नहीं है। आप बताइए फजर भाई। अच्छा, मुझे लगता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर अदर फील्ड्स एज वेल। स्टाइलिस्ट की भी बहुत जगह है, आर्ट डायरेक्टर्स भी नहीं है हमारे पास, बहुत कम है, बहुत गिने चुने लोग हैं। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में ना आपको क्लैरिटी बहुत कम होती है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आप एज ए मतलब, क्योंकि एक डायरेक्टर की पोजीशन होती है सबसे ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है, सबसे ज़्यादा आपको उसके पर्क्स ज़्यादा नज़र आते हैं, मे बी आप उसके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। बट यही मैं बात कहने की कोशिश कर रहा था पहले भी, कि अगर आपको खुद ये फिगर आउट करना ज़रूरी है कि आप क्या वाकई आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं। और सिर्फ डायरेक्टर बनना जो है वो उसके साथ बहुत सारी अटैच चीज़ें जो आपको सीखनी है, सही है। वो अलॉन्ग द वे आप कभी कभी खुद से भी सीख जाते हैं, कभी सीखनी पड़ती भी हैं। बट ये कहना कि नहीं कि इंडस्ट्री में सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए जगह नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर्स के अलावा बहुत सारी अलग फील्ड्स हैं। अब हमारे पास VFX के SFX के लोग नहीं हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में SFX के कोर्सेज़ भी नहीं हैं, ठीक है। हमारे पास स्टाइलिंग के कोर्सेज़ नहीं हैं, हमारे पास आर्ट डायरेक्शन के कोर्सेज़ हैं, बट उतना इन डेप्थ में भी शायद एक्सप्लोर नहीं करते। और हम एज अ होल जो है ना, जो कोर्स आउटलाइंस हैं उनमें ज़्यादातर जो है ना इंक्लिनेशन हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादातर एक जनरल उसकी तरफ होती है। तो फिर आप एक जनरली उसको देखते हैं, तो फिर आप उसको एज अ डायरेक्टर ही देखने लगते हैं। तो मुझे लगता है और डिटेल्ड कोर्स आउटलाइंस अगर हों तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को और ज़्यादा अवेयरनेस होगी टुवर्ड्स दोज सब्जेक्ट्स एज वेल। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अगर ये परसेप्शन है कि नहीं मेनली डायरेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं, आर्ट डायरेक्टर्स कम आ रहे हैं, और दूसरी फील्ड के लोग, उसमें मुझे लगता है कि ये एक्सपोजर का भी एक वो है कि स्टूडेंट लाइफ में नहीं पता होता कि, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हमारे साथ के फेलोज़ हैं जो मे बी आर्ट डायरेक्टर बने, उन्होंने खुद निकल के एक्सप्लोर किया, उनको वो ज़्यादा चीज़ मज़े की लगी एज़ कम्पेयर टू डायरेक्शन जॉब उनको ज़्यादा उसके अंदर ये कह लें मेहनत कह लें, या वो उसको उतना इन्जॉय नहीं कर रहे थे, वो देन दे टर्न टूवर्ड्स आर्ट डायरेक्शन। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और एक्सपोजर की कमी की वजह से मे बी शायद
स्टूडेंट्स आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स डायरेक्शन. तो लेकिन मार्केट में बहुत जगह है बाकी फील्ड्स की स्पेशली. सलमान, आपसे मैं just talking about underexplored genres of filmmaking, I would want to talk about tabletop filmmaking as well, since that is something that is a bit of a forte for you. So, what do you think? कि जितना मैं जानती हूँ वहाँ पे भी अभी I feel like there's not as much influx of students or young people who know about that so much or are taking part into that. So, what do you have to say about that? टेबल टॉप अगर आप लोग ने देखी हो जो कमर्शियल्स बनती है फूड की या कुछ, उसके अंदर आ जाता है, और कॉस्मेटिक्स की भी इस टाइप की चीज़ होती है. मैं टेबल टॉप में घुसा इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे स्टॉप मोशन आती थी. स्टॉप मोशन रिलेटेड मैंने एनिमेशंस बनाई थी, और फिर लकीली एक फूड की जॉब आई जो कि सबसे पहली जो मैंने करी थी बहुत बुरी करी थी, और उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, और फिर मैंने सीखा कि भाई किस तरीके से और अच्छा करते हैं, और फिर खुद ही एक्सपेरिमेंट करते हुए मुझे था कि इसके अंदर स्लोमो है, स्लोमो के साथ खेलते हैं, और आई गेस क्यूरियोसिटी थी, तो क्यूरियस हो के अब इतना कर लिया है कि अब VFX के अंदर बहुत सारे मैं अब फूड शॉट्स बना रहा होता हूँ जिसके अंदर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा रियल है कौन सा पोस्ट में किया है. सो इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी क्यूरियोसिटी किस में. मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा जो है VFX, स्टॉप मोशन, एनिमेशन और उस टाइप की स्टोरी टेलिंग में भी थी, तो इस वजह से मैं इस जगह पे थोड़ा बहुत हो गया. और डिफरेंट तरीके से है क्योंकि यार फूड शॉट्स आप कितने ही कर लो, इट्स वेरी मुश्किल के जो है आप कितने डिफरेंट कर सकते हो. सो हर बार जब हम बैठते हैं, ऑफ कोर्स मैं और मेरी टीम, तो हम सोच रहे होते हैं कि नए नए तरीके से हम इसको टेल करें ताकि जो है थोड़ा मज़े का आए. एंड आई थिंक फूड स्टाइलिस्ट किसी को बनना है तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हिट हो जाएंगे आप एंड फूड ट्रिकिंग की तरफ. ये एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड चीज़ है. अब यहाँ पे मैं इसके लिए पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. मुझे अपना पता है मैं तालियों के लिए तो नहीं आया, लेकिन इसके लिए बजा दें. ये बंदा इतना हम्बल हुआ हुआ इस वक्त यहाँ पे बैठा हुआ है. सही है, आपने अगर नोटिस किया हो, इसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ना हर एक मोमेंट को फील कर रहा था. डिटेल में उसने बताया कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया, कोरोना वायरस के टाइम पे भी मैंने सोचा, मैंने काम किया. अंडररेटेड तरीन काम है इंडस्ट्री में. सही है, बिल्कुल ही ऐसे लेते हैं, हाँ मेन फिल्म तो हो रही है यार, टेबल टॉप के लिए बुला लो. करने खड़े हूँ मैं, आप सबको आगे देखता हूँ कितना मुश्किल काम है. ठीक है, और ये बिल्कुल ही हम्बली ले गया ना, ऐसे ले गया. हाँ मैं ये करता 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 जो मैं करता हूँ ना, मैं बाकी दो की बात नहीं करूँगा, जो मैं करता हूँ इसको 2 घंटे लगेंगे फ्लोर पे वो कैरी करने में कि ये कैसे हो रहा है, और मुझे शायद 2 से 4 फिल्में लग जाएं समझने में कि ये करता कैसे. इतना बड़ा फ़र्क है. तभी जो है VFX ने बहुत गेम चेंज कर दिया है. अब ये भी डायरेक्टर है, बनना है डायरेक्टर. डराना नहीं है, इनकरेज करना है. सवाल ज़रा दोबारा बताइए. नहीं, सवाल वही हमारा चल रहा था कि सब समझते हैं कि बीइंग अ डायरेक्टर इज़ द ओनली रियली थिंग, जो कि young graduates mostly all really want to be directors only. So is that all that the industry has to offer? अच्छा, इसमें ना मुझे लगता है कि दोनों थोड़ा सा इंडस्ट्री का भी कसूर है और थोड़ा सा एकेडमिक्स का भी आई थिंक इसमें है. उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ. सो जब मैंने भी जब जैसे कोर्स आउटलाइन खोली तो उसमें लिखा था फिल्म मेकिंग इन बैचलर्स इन फिल्म मेकिंग. अब फिल्म मेकिंग जो है ना उसको डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि वो बेसिकली क्या है. फिल्म मेकिंग मोस्टली यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं डायरेक्शन है. वो फिल्म मेकिंग इन आर्ट, फिल्म मेकिंग इन सिनेमाटोग्राफी, फिल्म मेकिंग इन साउंड, ये यहाँ तो स्पेसिफिक कर दिया जाए, फिर इसके ऊपर कोर्स आउटलाइन बना दी जाए, और उससे ये होगा कि बच्चे को फिर एग्जैक्ट पता होगा कि उसने किस डिपार्टमेंट में जाना है. जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं जब गया तो मैं तो ये समझ कर आया ये डायरेक्शन ही पढ़ा रहे हैं, और लिटरली वो कोर्स का आउटलाइन भी यही था कि वो डायरेक्टर्स की तरफ ही जा रहे थे. थीसिस में भी हर बच्चे को अपनी फिल्म डायरेक्ट करनी होती है, जो कि मैं अपने जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैंने भी ये सवाल उठाया था, और मैंने कहा था, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा चेंज करें और इसको या तो कोलैबोरेटिव बनाएं कि जिसने डायरेक्शन करनी हो डायरेक्शन करे, जिसने सिनेमाटोग्राफी करनी हो सिनेमाटोग्राफी करे, और कोई थोड़ी फिल्में बने लेकिन फिर बहुत अच्छी फिल्में, बड़ी तगड़ी फिल्में बनेंगी, क्योंकि हर बच्चा फिर अपने डिपार्टमेंट का बेस्ट देगा उसके अंदर.
बट खैर, तो इंडस्ट्री की तरफ आए तो फिर इंडस्ट्री में भी यही है, वो आप प्रमोट इतना कर रहे होते हैं, हमारी बड़ी डायरेक्टर्स ड्रिवन इंडस्ट्री है, हमारे सामने कुछ सीनियर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, बाबर भाई भी शायद एग्री करेंगे इस बात से कि यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा कल्चरली जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा लाइमलाइट और वो सब देते हैं, इवन का कोई अच्छा काम भी आता है तो स्टेटस पर भी आप देखेंगे मोस्टली डायरेक्टर्स को टैग किया हुआ सब। मेरी ये कोशिश होती है छोटी सी कि मैं बाकी टीम को भी एक्नॉलेज करवाऊँ, उनको भी थोड़ा सा और अवेयरनेस, मतलब उनके बारे में भी लोगों को पता चले, चाहे वो कलरिस्ट हो, चाहे वो साउंड का हो, चाहे वो एक्टर हो। सो आई थिंक दोनों को आई थिंक पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ताकि ये कल्चर थोड़ा सा चेंज हो और बच्चों को थोड़ा सा पता चले कि नहीं यार बाकी भी फील्ड्स हैं और वो भी इक्वली उतनी मेहनत है उसमें भी, ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है साउंड डिज़ाइन बड़ा अंडररेटेड डिपार्टमेंट है, क्योंकि मैं फिल्म ज़्यादा करता हूँ तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है साउंड पे। एक फ़िल्म बनाने से डबल दिन लगते हैं एक साउंड डिज़ाइन करने में एक फ़िल्म पे, जो कि नहीं पता होगा आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि बड़ी बारीक, बहुत छोटी छोटी, इवन के फुट स्टेप्स भी आपने लगाने तो वैसे नहीं आप लगा सकते, उसमें बड़ा टाइम लगेगा आपको लगाने में, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं हो तो आपको लगता है आप एक हॉलोनेस है, एक एम्प्टीनेस है, फिल्म फ्रेम में मज़ा ही नहीं आएगा आपको। सो खैर इस तरह बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी मेहनत है, सबका ही वो है। सो आई थिंक यस, अगर दोनों मिलकर ये चीज़ों पे करें काम तो मुझे लगता है चेंज आएगा डेफिनेटली। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो अली ने बात साउंड की मोस्टली स्टूडेंट फिल्म्स जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो साउंड पे आ रही होती है, कि साउंड की वजह से आप ना लैंड नहीं कर पाते उस नैरेटिव में। और मेरा अपना जो प्रोसेस है, जब भी मैं कोई फिल्म डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ या कुछ करना शुरू करता हूँ, मैं विजुअल्स नहीं सोचता। विजुअल्स बहुत ईजिली आप कंसीव कर लेते हैं। आप आगे बंद करके पहले अपनी फ़िल्म सुनना शुरू करें, सही है। जहाँ से आप फिल्म सुनना शुरू करेंगे उसमें क्लैरिटी भी आना शुरू हो जाती है, साथ ही साथ आपके विजुअल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक साउंड पे तो काम होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत। हाँ, और कोई है भी नहीं। अच्छा, सो थोड़ी सी हार्श रियलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। हमेशा बहुत अच्छे बजट्स नहीं होते when we're working with films, when we're working with even commercials or music videos or any other forms. So budget constraints के साथ creatively कैसे काम किया जा सकता है, और how have you guys been doing it? सलमान। सो म्यूज़िक वीडियोस मैंने अपने शुरू के करियर में काफ़ी बनाई हैं और अभी भी बनाते रहता हूँ। यूजुअली पैसे नहीं होते हैं हमारे पास, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्केल को कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो हम डिज़ाइन ही ऐसे करते थे उस शॉर्ट म्यूज़िक वीडियो को कि जो लिमिटेशंस है पहले लिख लेते थे, जो बजट था उसको दिमाग में रखते थे और फिर उसके बाद एक्सप्लोर कर रहे होते थे। तो जैसे पहली स्टॉप मोशन जो बनाई थी वो तकरीबन 18 दिन की शूट थी, लेकिन 3 लाख रुपए में बनी थी। सो 2015 में अभी भी अगर मैं म्यूज़िक वीडियोस बनाता हूँ, एक मेरा दोस्त है, यूजुअली दोस्तों के लिए बनाई है, उसके पास 70,000 रुपये थे, 70 to 80,000। तो मैंने अपने स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन करके हम लोग ने शूट कर ली थी, क्योंकि हमने बोला VFX पे कुछ करेंगे, लाइक पॉप आर्ट टाइप की। सो बट येस, VFX पे आते हैं तो आपके पास VFX का अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तब आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको VFX का कुछ नहीं पता तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। सो आई गेस आपकी हमेशा कोई भी लिमिटेशन होती है, मेरे पास जब भी हुई है तो मैं उसको उस तरीके से सोचता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। एक बार मैं जब ओ शबाना एक म्यूज़िक वीडियो थी ई शार्प की, उसके अंदर बजट रिस्ट्रेन ऐसा था कि मैं बड़ा कैमरा ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि बजट नहीं था। और अगर मैं एलेक्सा पे जाता 1 दिन की शूट होती, और मैं अगर सोनी पे जाता तो मैं 2 दिन की शूट कर पाता। सो आई थॉट कि लेट्स गो विद द स्मॉल फॉर्म फैक्टर, क्योंकि मेरी स्टोरी उसमें इन्वॉल्व है, उसके अंदर शॉट्स ज़्यादा है और उसके अंदर ऐसे शॉट्स हैं जो कि अगर मैं आई थिंक क्वालिटी डज नॉट मैटर, फॉर्म फैक्टर और स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई गो विद द स्मॉल फॉर्म फैक्टर टू कंप्लीट द स्टोरी, और आई थिंक वो काफ़ी मज़े की बन गई थी उसके डिसीजन की वजह से। सो इट्स लाइक क्लेवर डिसीजन, क्रिएटिव डिसीजंस ऑलवेज मैटर। एंड अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप अलग तरीका आजमाएं और आप देखें कि आप सिंपल चीज़ क्या कर सकते हैं। मेरी हमेशा ये होती है, एक छोटी सी सिंपल चीज़ लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ, तो वो सिंपल चीज़ 10 सिंपल चीज़ हो जाती हैं। अगर आप एक साथ विजुअली देखें
तो एक वाव इफेक्ट लाती हैं. सो आई थिंक ये मैं तरीका आजमाता हूँ. अच्छा, आई थिंक बड़ा अच्छा कवर किया है सलमान ने, बिकॉज बड़ी सही बात है कि आपके पास जब बजट कम हो तो फिर आप सोचे ही उसी तरह, आपको उसी तरह. और आई थिंक ये बड़ी खूबसूरती भी है आर्ट की, इस फील्ड की, कि आप कुछ भी कर सकते हैं चाहे कुछ भी बजट हो. सिर्फ एक चीज़ है जो अक्सर मैं सुनने को मिलती है मुझे, कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं, हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं कि यार वो मैंने नो बजट फिल्म बनाई है. वो जो नो बजट फिल्म होती है ना, वो नो बजट नहीं होती एक्चुअली. देखिए उसमें भी बजट होता है, आपको बजट कहीं ना कहीं चाहिए. अगर मैं अपने घर से सेट तक जा रहा हूँ तो मेरा पेट्रोल लग रहा है, वो भी तो एक लॉजिस्टिक का पार्ट है, वो तो कहीं काउंट होगा ना. इसी तरह जो लोग बंदे आ रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, सो वो आई थिंक नो बजट कुछ नहीं होता. आपको एक बजट डेफिनेटली चाहिए होता है, एटलीस्ट एक बेसिक बजट जिससे आप कुछ खड़ा कर सकें. उसके अलावा फिर आपको खुद सोचना है इनिशियली कि इस बजट में क्या चीज़ बेस्ट पॉसिबल है इस छोटी सी बजट के अंदर है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है. मैंने अभी खुद एक शॉर्ट फिल्म की है कोरिया के अंदर, और मैंने खुद अपने ही जेब से की है, अपनी पॉकेट से की है. और हमें पता था कि हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे, क्या रिसोर्सेज होंगे, लोकेशन के क्या मसाइल होंगे, कितना टाइम होगा शूट करने का. वो सब सोचते हुए, सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए हमने वो एक छोटी सी फिल्म डिज़ाइन की, उसी तरह का स्क्रिप्ट लिखा, उसी तरह की सोच रखी, बल्कि उसको शूट पर जाके मैंने मज़ीद स्क्वीज़ कर दिया. बट एसेंस वही है, कॉन्टेक्स्ट भी सब वही है, सब कुछ वही है, और स्केल भी आपको फील वही होगा. सो ये आई थिंक ये बड़ी खूबसूरती है इस फील्ड की, कि आपके पास होता है ये सब कंट्रोल, कि आप किस तरह जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कम बजट. बाकी यस, सलमान इज़ एब्सोल्युटली राइट. अगर आपके पास कोई हुनर है SFX का या VFX का, सो बल्कि अपनी स्पेशलिटीज़ को अगर आप यूज़ करें तो आपको बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों में. इनका अलग डेफिनेटली स्पेशलिटी होगी, ताहा की अलग होगी, सलमान की अलग स्पेशलिटी. सो यस, डेफिनेटली अपने टूल्स को यूज़ करें तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है आपको कम बजट में. अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफ़र करूँगा सलमान से और अली से. वो ये कि हम क्रिएटिव लोग हैं, बजट जितना भी मिल जाए ना वो हमेशा कम होगा. तो मुझे लगता है बजट, कम बजट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस बजट होता है. ठीक है. और एज अ क्रिएटिव पर्सन आप हमेशा ये चाहते हैं कि इसको बेहतर से बेहतर करते रहें, तो आपके दिल में यही रहता है यार और बजट होता, थोड़ा सा और होता, थोड़ा और बेहतर कर लेते. लेकिन बात यह है कि, और हमारे प्रोड्यूसर्स का भी मोस्टली यही है कि पहली कॉल उठाती है आप, पहली बात ये होती है कि बहुत बजट कम है. तो वो एक गिवन है, वो कोई भी किसी की भी कॉल आएगी सबसे पहली बात ही होगी, तो वो तो आपने जहन में लानी ही नहीं है कि बजट कम है. मुझे लगता है क्रिएटिव प्रोसेस ना थोड़ा सा आपका रुक जाता है जहाँ आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि बजट कम है. मुझे लगता है आप थोड़ा सा रिवर्स अपना लेके चलें. एज अ क्रिएटिव पर्सन आपने जितना बेहतर सोचना है ना उस फिल्म के हवाले से आप सोच लें. ठीक है. उसके बाद जब आपने वो चीज़ सोच ली और उसके अंदर कोर उसका जो है ना वो इंटैक्ट आप सोच लें कि मिसाल के तौर पे आप कोई नैरेटिव फिल्म कर रहे हैं, सही है, आपको जस्ट ये मार्क करना है कि यार इस फिल्म के थ्रू या इस सीन के थ्रू मैं क्या फील कन्वे करना चाहता हूँ, ऑडियंस को क्या फील करवाना चाहता हूँ. ठीक है. वो आपने कोर पकड़ लिया. ठीक है. उसके बाद आप डिडक्ट करना शुरू करें. ठीक है. आपने बजट में लेकर आना है, आपने पहले सबसे बड़ा सोच लिया, उसके बाद से आपने कोर को जो है कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर चीज़ें डिडक्ट करते जाएं और सम हाउ वो किसी ना किसी तरीके से आपका विजन जो है ना उस बजट में आ जाएगा. लेकिन अगर आप इनिशियली यही सोच के ही सोचना शुरू करेंगे कि यार मुझे ट्रेन शूट करनी है और ट्रेन में मुझे इतने सारे लोग दिखाने, और मेरे पास तो ट्रेन का क्या है, मेरे पास लोगों का भी बजट नहीं है, एक्स्ट्रास का भी बजट नहीं है. अब आप उसको क्रैक करेंगे कि मैंने किस तरह से करना है. तो अनुराग कश्यप का मैंने इंटरव्यू देखा था, एक टेलीफोटो पे दूर लेके बैठ गए थे, आम लोग थे, अपना एक्टर बीच में प्लेस किया, शूट करके बाहर निकल गए. आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो पूरा सीन जो है आपने शहर में शूट किया हुआ है और पूरा मे बी आपने ट्रेन भी जो है वो, अब वो उनकी एक फिल्म थी महाकाली के नाम से कुछ, जो कि वो कहते हैं कि उन्होंने 3-5 साल में शूट करी थी, बिकॉज 5 साल में कोई एक फेस्टिवल आता है साल में किसी एक दिन, जिस दिन सारी लाइटें जल रही होती शहर की, तो वो उस रात को शूट करते थे बिकॉज उनके पास लाइट का बजट नहीं था. ठीक है. लेकिन उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे कि नहीं यार मतलब लाइट नहीं होगी, या नैरेटिव का कोई सीन माइनस नहीं कर दिया, उन्होंने एक और राउट निकाल लिया ज़रूर उसका. तो मुझे लगता है कि आप दोनों तरह से कि क्रिएटिव पर्सन के लिए कभी भी बजट जो है वो हमेशा कम ही रहेगा, और बजट को जहन में रखते हुए ना सोचें.
बजट को जहन में रखते हुए सोचेंगे तो फिर वो एक कोई लिमिटेड सी चीज़ बनेगी. दैट्स व्हाट आई थिंक. वैसे तो बजट आप लोगों का टॉपिक ही नहीं होना चाहिए. हम आप लोगों को ना बंद कर देंगे, आप लोग टेंशन में आ जाएंगे. वो ना करें, सोचें, बनाने खड़े हो जाएं. सही है, पैसे भी आ जाएंगे, काम हो जाता है. सही है, सोल्यूशन आप, हम भी सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं क्लाइंट के लिए, अपने दोस्तों के लिए. आप भी सोल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे. बनना आपने सोल्यूशन प्रोवाइडर है. अगर आप अगले को टेंशन दे रहे हैं ना तो, और सिंपल देखें, हम, आप फिल्म बनाएं, आप ड्रामा बनाएं, आप कमर्शियल बनाएं, आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं, कुछ भी बनाएं, जब तक आप अपने लिए बना रहे हैं तब तक तो ठीक है. सही है. जब आप अपने लिए बना रहे हैं ना और अब्बू से या खुद से पैसे लगा रहे हैं तो आपके दिमाग में बजट भी नहीं आएगा. वो तो अपने पैसे हैं ना, कम से कम खर्च हो. जब क्लाइंट से ले रहे हैं ना तो आपने उसको उसकी चीज़ बना के देनी है, सोल्यूशन देना है, प्रोड्यूसर को कमा के देना है, वरना उसने नहीं लेना है आइंदा. तो बजट आपका टॉपिक ही नहीं है. आप ईजी होके सोचें, ईजी होके काम करें. उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए माशाल्लाह, 100 फिल्में किए बैठे हुए. तो अभी आप शायद कोई पहली करेंगे, दूसरी करेंगे, चौथी करेंगे. ऐसे कंपेयर नहीं करना. हम कंपेयर गलत करते हैं. हम इंडिया से कंपेयर करते हैं, इतने करोड़ की फिल्म, उतने करोड़ की फिल्म, उतने करोड़ की फिल्म. उनके पास रखे हुए भाई, हमारे पास नहीं है. ठीक है, मज़ा ही ये है कि कम चीज़ों के अंदर हम उनसे compete कैसे करते हैं. पैसों में ना करें, क्राफ्ट में करें, आर्ट में करें. So, अभी current digital world की अगर बात करें, with the emergence of numerous OTT platforms, what do you think the future of the cinema is like? बिस्मिल्लाह. इसमें तो मेरे हिसाब से देखें, जितने प्लेटफॉर्म्स आते जाएंगे, जिस तरह से एक न्यू वेव आ रही है, डेली बेसिस पे लोग आ रहे हैं माशाल्लाह. अब कोई 1000 के करीब का नंबर बनने वाला होगा सिर्फ सिंध का, जो हर साल से मीडिया का स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है. और आप लोगों को शायद नहीं पता हो, हम सबसे ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि हमें सबसे कम लोग फ्लोर पे दिखते हैं. हमें पता है कि हमारे टीचर्स ने, हमारे सीनियर्स ने, हमारे जानने वालों में कितना यंग ब्लड आया है. सबसे काम का होता है यंग ब्लड, सबसे ज़्यादा एनर्जी लेके आता है फ्लोर के ऊपर, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है और भागता है. तो भागने वाले वैसे ही फ्लोर पे लोग कम होते हैं, अब चीखना पड़ता है उनको भगाने के लिए. तो जितने प्लेटफॉर्म्स आएंगे मेरी नज़र में उतना अच्छा है. सही है, कैनवस है हर चीज़ आपका, फ़ोन से लेके टीवी से लेके सिनेमा, नेटफ्लिक्स. आप फिल्म बना लेते थे, सिनेमा में चल जाती थी, किसी दूसरी कंट्री में चली जाती थी. सोचें नेटफ्लिक्स पे चली गई, पूरी दुनिया देख रही है. आई विल गिव यू एग्जांपल. मैंने मनी हाइस्ट, पता नहीं इतना फारिग था मैं किसी एक टाइम पे, मैंने कब का देख लिया था. मैं ऐसे ना बैठा हुआ होटल पे दोस्तों के साथ बात करते हुए बता रहा था. 1 महीने बाद वो इतना हिट था कि, और मैंने स्पेनिश में देखा था बाय द वे. मैं सिर्फ समझ रहा था कि हो रहा क्या है, बेवकूफ़ था. चैनल ही वो नहीं नीचे चेंज किया था, मैंने देख लिया, वो हिट हो गया. अब देखें, उन्होंने प्लेटफॉर्म पे डाला, उसके बाद उनको रूम मिला काम करने का, अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने का. डायरेक्टर को छोड़ दें, टीम को छोड़ दें, आपकी तरफ से अगर एक सपोर्टिंग टैलेंट को भी फ़ायदा हो जाता है ना तो आपको फ़ायदा हो गया. तो आप उन एक्टर्स को देखें, वो मल्टीपल फिल्म्स में आपको दिखेंगे बहुत सारे. आप तो टीम के नाम नहीं पढ़ते, अगर आप पढ़ेंगे किन किन लोगों ने काम किया तो आपको और जगहों पे दिख जाएंगे. प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है. अगर एक तमाशा ऐप है हमारी लोकल, अगर उस पर भी आपका काम आ रहा है तो आपके लिए फ़ख्र की बात है. आप अपने माँ बाप को भी दिखा सकते हैं, आप अपने दोस्त यार को भी दिखा सकते हैं यार मैंने काम किया, किसी प्लेटफॉर्म ने ले लिया है, आपका काम किसी ने ख़रीद लिया है, एक्सेप्ट किया है. यहाँ पे ना लोगों को आदत है पुरानी के पैसे दे के टिकट लेके फिल्म देखने की. जैसे ही चीज़ें मुफ्त में मिलना शुरू हुई है ना तो थोड़े नखरे भी हो गए. अब ना आपको व्यूअर को लाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ोन जो है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये एंटरटेनमेंट का वो चीज़ बन चुकी है कि लोग थोड़ा सा फिल्म ड्रामा से हट जाते हैं. तो आपको और क्रिएटिविटी को अपने लाना है. जो प्लेटफॉर्म मिले, जो भी मिले वो अच्छा है, कोई प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है. यूनिवर्सिटी भी मिलती है ना चलाने के लिए, चला दें. रोड पे भी देखने बैठा, दिखा दें, ऑडियंस है वो आपकी. अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग
रील्स और टिकटॉक को एज अ मीडियम यूज़ करें, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अभी अगर यहाँ पे तो नहीं, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग फिल्म में मतलब शॉर्ट स्टोरीज 15 सेकंड 1 मिनट टाइप की वर्टिकल मीडियम्स के लिए बना रहे हैं, और दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट मीडियम टू शोकेस योर आइडियाज़। व्हाई नॉट यूज़ दैट ऑल्सो। अच्छा, आपने पूछा सिनेमा, फिल्म एंड OTT प्लेटफॉर्म। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आज से 5 साल पहले जब कोविड आया था तो उस वक्त फिल्म और सिनेमा मौजूद था। कोविड के बाद से ना एक बहुत क्लियर डिवाइड आ गया है सिनेमा और फिल्म में, ठीक है, क्योंकि फिल्म उठ के आ गई है OTT पे, ठीक है, और सिनेमा अलग रह गया है। तो हमारे यहाँ अक्सर बात होती है कि यार हमारे यहाँ फिल्म कब बनेंगी, कैसे बनेंगी, हिट कैसे होंगी, पैसे कब कमाएंगे। मुझे लगता है सिनेमा इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं ऑडियंस को। अगर आपकी फिल्म इज़ लार्जर देन लाइफ, स्क्रीन पे उस तरह से दिख रही है जो कि एक एक्सपीरियंस दे रही है ऑडियंस को, तो मुझे लगता है वो सिनेमा के लिए, क्योंकि बहुत क्लियर डिवाइड हो चुका है। कहानियाँ आपके OTT प्लेटफॉर्म तक आ चुकी हैं, ठीक है, लोग घर पे बैठ के कहानी देख लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई CGI नहीं हुआ हुआ या कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई एक्शन नहीं हुआ हुआ, सिंपल कहानी है, वो आपके OTT प्लेटफॉर्म तक महदूद है और वो सही है। और देयर इज़ अ रीज़न कि अब जो लोगों की रिलीज़ करने की स्ट्रैटेजी है वो उस तरह से चेंज हो गई है। रिसेंटली इंडियन फिल्म आई थी वो दैट केम डायरेक्टली टू नेटफ्लिक्स, 3 दोस्तों की कहानी थी, आई डोंट नो, खो गए हम कहाँ, वो डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पे आई थी। देन मंकी मैन आई रिसेंटली। मंकी मैन वॉज इनिशियली मेड फॉर नेटफ्लिक्स, देन उसको बाई करके उन्होंने सिनेमा पे रिलीज़ किया बिकॉज इट वॉज मेंट फॉर द सिनेमा। वो बनाई इस तरह की गई कि वो सिनेमा में चले, ठीक है। तो देयर इज़ अ क्लियर डिवाइड कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, आप ये सोच के बना रहे हैं आपने कि आप OTT के लिए बना रहे हैं या आप नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं। अब बात आती है OTT की पाकिस्तान में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मुझे OTT प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थ्राइव करते हुए नहीं लगते रिसेंट, मतलब आने वाले वक्तों में। मे बी शायद 10-15 साल 20 साल बाद शायद हो जाए, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता, बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि एज अ सोसाइटी हम बहुत इनटॉलरेंट हैं, हम टॉलरेट नहीं करते चीज़ों को। अगर हम ड्रामास की भी बात करें या हम कोई भी छोटी सी भी कोई ऐसी चीज़ जो कि कोई ऐसे सब्जेक्ट पे काम करें, तो वो अचानक से उसके ऊपर जो ना बहुत ज़्यादा बैकलैश आना शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ एक तो पहली चीज़ ये कि मुफ्त में अगर लोग चीज़ देख रहे हैं ना, वो एंटरटेनमेंट मिल रहा है, काफ़ी है। लेकिन अगर और वही लोग जब आप सड़क पे खड़े होकर शूट कर रहे होते हो तो वही लोग आपको टॉन्ट भी करते हैं, आपको तंग भी करते हैं, और फिर वही चीज़ आपके अपने घर पे जाके देखते भी हैं। तो हमारे यहाँ रिलेटिवली थोड़ा सा एनवायरनमेंट शूट के हवाले से थोड़ा सा अनफ्रेंडली है, ठीक है। और लोग भी थोड़े से जो है ना इंटॉलरेंट होते हैं जब वो शूट देखते हैं। हमारे यहाँ रिसेंटली एक वाक़या हुआ था, पिछले साल एक सेट पे अटैक हो गया था, 150-200 लोगों ने मारना कूटना शुरू कर दिया था लोगों को। तो OTT की जहाँ तक बात है, हमारी ये बहुत लिमिटेड, OTT एक प्लेटफॉर्म है, सही है, और एक बिज़नेस मॉडल है। तो किसी भी चीज़ के चलने के लिए उसका बिज़नेस मॉडल का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे लगता है बिज़नेस मॉडल OTT प्लेटफॉर्म का काम करता है सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको चाहिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो आपके पाकिस्तान में जितने ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड रखते हैं, डेबिट कार्ड रखते हैं, वो सब्सक्रिप्शन लेंगे, और कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में उस तरह के लोग कम हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। मुझे लगता है कि एक तो टॉलरेंस वो होना ज़रूरी है सोसाइटी में। एक कहानी बनी थी जावेद इकबाल के ऊपर, मेनली वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे सकती थी आपकी सोसाइटी में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चली वो, सही है। हालांकि वो सिनेमा पे चलनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज़ पूरी दुनिया में इस तरह के सब्जेक्ट्स पे काम होता है, लोग काम करते हैं और उससे अवेयरनेस आती है। बिकॉज़ आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले हमें नहीं पता था इस तरह के लोग दुनिया में मौजूद हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। बट देन हमने कुछ नेटफ्लिक्स पे कुछ सीजन्स देखे, कुछ चीज़ें देखी, और हम अवेयर हो गए, और हमने कुछ अपने माहौल में कुछ चीज़ों में बदलाव लेकर आए कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ जो है ना इस तरह की चीज़ें बैन हो जाती हैं, नहीं चलती हैं। तो फिर अगर आप OTT पे लेकर आएंगे तो फिर घूम फिर के उसी तरह का कंटेंट आप देख रहे होंगे जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे यहाँ ड्रामास बनते हैं और एक ही तरह के बनते हैं। उसका एक ही रीज़न है ये, क्योंकि अगर कोई हट के थोड़ी सी चीज़ बनना शुरू होती भी है तो उसके ऊपर बैकलैश भी ऑडियंस से ही आता है।
तो प्रोड्यूसर जो इतने करोड़ों रुपए लगाता है वो नहीं चाहता कि वो एक तो उसका नुकसान हो, सही है, क्योंकि नुकसान उठाने के लिए नहीं प्रोड्यूसर काम करता, प्रोड्यूसर पैसे कमाने के लिए करता है. तो दैट्स व्हाट आई थिंक. आई थिंक प्रीटी मच समड अप बाय फजर. बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सिनेमा जो है वो वाकई अब बड़ा डिवाइड हो गया, बड़ा क्लियर. अगर आप देखें तो मौला जट की एग्जांपल है आपके सामने. वो फिल्म हिट होने का रीज़न ही सबसे बड़ा ये है कि वो जो उन्होंने विजुअल्स और वो जो ग्रैंडनेस, जो ग्रैंड्योर दिखाया है, वो सिनेमा के लिए ही था और लोग यही देखने गए हैं. आई थिंक वो फिल्म अगर नेटफ्लिक्स पे भी आती ना तो तब भी लोग एक दफ़ा सिनेमा ज़रूर देखने जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि वो फिल्म जैसे इवन कि गॉडजिला भी आई थी तो लोग तब भी जा रहे हैं. मैं भी गॉडजिला सिनेमा ही में ही जाके देखूँगा एक्सपीरियंस करने के लिए. दैट्स इट. या सो बिल्कुल ठीक है. OTT वाली जो बात है ना, आई थिंक हम अपना लोकल OTT तो शायद मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी इस्टेब्लिश कर पाएँ. बट नेटफ्लिक्स वाला जो रास्ता है वो भी थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया है बिकॉज हम लोग जो है वो सारी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे जो नेटफ्लिक्स ने हमसे मांगी हैं. वो सबसे बड़ा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का हाथ है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जो पेमेंट गेटवेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है. पाकिस्तान की बहुत कम आबादी है जो बैंकिंग यूज़ करती है. इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो बहुत दूर की बात है, बैंकिंग वाले भी बहुत कम हैं अब. और कंपेयर टू इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में बैंकिंग की बहुत बड़ी अवेयरनेस है. वो लोग डिफरेंट फिनटेक कंपनी से आ रहे हैं, पेटीएम वगैरह, भारत पे पता नहीं क्या क्या है वहाँ पे, तो डिफरेंट. तो वो उनकी तो टेंशन ही ख़त्म हो गई. एक स्वीपर के पास भी जो है ना वो अकाउंट है और वो सब कुछ कर रहा है उससे. तो सो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा एक मसला है. सेकंड जो मसला है वो ये कि वो कह रहे हैं कि यार जब आपकी ऑडियंस, हम सब कॉन्टिनेंट की ऑडियंस हम इंडिया से कवर कर ही रहे हैं, तो फिर आप लोग ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे जो है वो नेटफ्लिक्स को भी फ़ायदा होगा. कि चलो हम रिस्क लेकर आ भी जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी कम इंफ्रास्ट्रक्चर है तब भी हम आ रहे हैं, लेकिन स्टिल ऐसा क्या है डिफरेंट जो आप देंगे जो इंडिया नहीं दे रहा. सो वो भी एक सवाल या निशान है. उस पर भी तक लेट्स सी क्या होता है. सो बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेटफ्लिक्स आता है तो फिर बहुत अच्छा एक फ़ायदा होगा, क्योंकि आई एम श्योर बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्टोरीज़ भी हैं. उनको अगर कोई कमीशन करेगा तो अच्छा कंटेंट डेफिनेटली बनाएंगे और वो चलेगा भी. बट लेट्स सी. इसमें अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट साथ देगी, कौन देगा, कौन सी एंटिटी है जो इस चीज़ को पूरा करे, और फिर आई थिंक कोई इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म आए तो फ़ायदा. लोकल का मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन दी एंड कहानी में ही आ जाएगी जो कह रहा है बजट के ऊपर. बजट नहीं है, जो कि अभी भी हैं कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, बट वो कहते हैं बजट नहीं है. अली ने देखें जो बात की ना, वो बड़ी इंटेलेक्चुअल बात है और बहुत आगे की बात है. सही है, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, क्योंकि शायद हम तीनों में से एक बंदा ये है जो नेटफ्लिक्स के साथ इन कांटेक्ट में रहा है, ये मैं आपको बता दूं. बट आप लोग अगेन यंग ब्लड हैं, तो उम्मीदों पे तो हम किसी की भी पानी नहीं फेरेंगे. कल क्या होगा ना मुझे पता है, ना कोई गारंटी ले सकता है. हमारा प्लेटफॉर्म हम चला सकते हैं, बाहर से नहीं आके कोई चलाने वाला. तो नेटफ्लिक्स अगर हमें पैसे नहीं दे रहा बनाने के, तो हम कुछ ऐसा बना लेते हैं जो नेटफ्लिक्स खरीद ले. किसी दिन तो देगा, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार के बाद देगा. तो इसने 2 फिल्म्स की हुई हैं, दोनों नेटफ्लिक्स पे आई हैं, नेटफ्लिक्स ने पैसे नहीं दिए. उसने 2 फिल्म पे काम किया, वो नेटफ्लिक्स पे आ गई. किसी ना किसी ने ना, यहाँ बैठे हुए बंदे ने ना कोई इंटरनेशनल अवार्ड विन किया हुआ है, जो सीनियर कैपेसिटी में यहाँ पे लोग हैं. तो काम करें, सही है. अच्छा, आपका पहला काम भी कोई मतलब ऑस्कर विनिंग काम नहीं होता हर किसी का. अल्लाह भी किसी किसी को पहले पे नवाज देता है, किसी को आजमाता है. तो नहीं पता आप कितने आजमाए जाएंगे. तो काम कर लें, जो प्लेटफॉर्म मिले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो प्लेटफॉर्म मिले. सिनेमा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी. अगर मैं उसको तोड़ के बात करूं, जो उसने बात की बिल्कुल ठीक है कि वो नेटफ्लिक्स पे भी आ जाती ना तो उसको लोग सिनेमा में देखने जाते. वो इसलिए जाते हैं कि वो जो एक्सपीरियंस है ना, उनके घर की टीवी स्क्रीन का साइज़ ये है, टीवी बहुत महंगा है, तो बोल रहे हैं हम 1000 रुपये देके बड़े पे एंजॉय कर लेते हैं. किराए की ज़िंदगी है हमारी सबकी. तो वही मतलब उन्होंने ये किया और वो एक्सपीरियंस हासिल कर लिया 1000 रुपये में, क्योंकि वो लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का टीवी नहीं अफोर्ड कर सकते थे. तो वो चीट रूट है. देखने वाले ने चीट रूट निकाला हुआ है, बनाने वाले निकाल लें तो क्राफ्ट ले जाएगा. क्राफ्ट कहीं भी ले जाएगा, उसको पॉलिश कर लें. क्या बना, ऑडियंस का ज़रूर सोचें कि ऑडियंस क्या है, कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा. मैं फिर वही बोल रहा हूँ, कहानी है. फजर ने कितनी अच्छी बात की कि लोग रोड पे मार भी रहे हैं,
धक्के भी दे रहे हैं, सुना भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, फजूल तरीन सवाल है, ड्रामा बन रहा है। उनको सिर्फ ये पता अभी तक हमारी ऑडियंस यहाँ है, ड्रामा बन रहा है, ठीक है, बाद में देख भी रहे हैं। हर तरह से लोग मिलते हैं, अभी बहुत यंग हैं, मैं भी बहुत यंग हूँ इस बारे में बात करने के लिए। काम करते हैं, अच्छा लिखते रहें, एक दूसरे को कहानी सुनाएं, पता चल जाएगा, अपना भी आपको पता चल जाएगा कि क्या कहाँ कहाँ हमने काम करना है। टीचर सिखा रहे हैं, सिखाते रहेंगे। 8 साल, कितने साल हो गए हमें ग्रेजुएट हुए? 8 साल हो गए ना, माशाल्लाह, सही है। ये टीचर्स हैं जिन्होंने इज्जत दी है तो आके बैठा हूँ। और ये आज भी हम कोई कॉल करके सवाल करते हैं ना, ये हल करते हैं। और फिर इसके बाद डुप्लीकेशन है इन लोगों की, मतलब बाबर भाई ने तो नहीं पढ़ाया हमें यूनिवर्सिटी में, लेकिन आज शायद मैं सर सकलैन से पहले बाबर भाई को कॉल कर लेता हूँ, बाबर भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया ना। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बिला झिझक ताहा को कॉल कर लें, अली को कॉल कर लें, फजर को कॉल कर लें, सलमान को कॉल कर लें। हमने इस इंडस्ट्री में आके नो बोलना भी सीख लिया है। हम बिजी होंगे या कोई परेशानी होगी, हमें जवाब नहीं आता होगा, हम नो बोल देंगे। अदरवाइज आप सब के लिए दरवाजे खुले, जब मिलें जहाँ मिले पकड़ लो। जिस दिन स्टार बन जाऊंगा, मन्नत जैसा घर बना लूंगा, फिर बात अलग हो जाएगी। तो काम करना है, सोचना नहीं है प्लेटफॉर्म का। So we have to open the house for Q&A now. Anyone from the audience who has a question? Ji. Should we pass the mic? Thank you so much, Taha. अस्सलाम वालेकुम। अभी यहाँ पे एक दिन पहले, मतलब फर्स्ट डे, एक टीवी के हवाले से एक क्वेश्चन हुआ था। अच्छा, तो टीवी के हवाले से एक सेशन हुआ था, तो उसमें मेरा उनसे यही सवाल था कि जो नए इंडस्ट्री में बच्चे ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, तो उनका ये तासुर था कि भाई ये जो बच्चे पढ़ कर आ रहे हैं इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर, वो उस स्पेस पे और उस कंटेंट पे वो काम नहीं कर सकते जो इस टाइम पे टीवी ड्रामा इंडस्ट्री की डिमांड है। और उनकी जो पूरी बात का लुबे लुबाब ये था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जो आपने 4 साल बैठ के ख्वाब देखे हैं, जो कंटेंट के हवाले से आपने ख्वाब देखे हैं, चीज़ों को बदलने के हवाले से ख्वाब देखे हैं, तो वो उन तमाम चीज़ों को आप एक तरफ कोने में रख के एक नया सफ़र टीवी का स्टार्ट करें। और फिर उनसे जब मेरा ये सवाल था कि अगर हम भी वही करें जो आप लोग कर रहे हैं, तो फिर हम कंटेंट का शिकवा किस तरह कर सकते हैं। तो उनको इस चीज़ का कोई मुझे ऐसा जवाब नहीं मिल पाया था। लेकिन अब मैं आप लोग, क्योंकि तमाम लोग फिल्म ग्रेजुएट्स हैं, तो जब आपने ये चीज़ इंडस्ट्री में जाके फेस की, तो आपने इसको किस तरह से टैकल किया। और जो यूथ है जो इस टाइम ग्रेजुएट हो रही है, जो मेरा बैच है या मुझसे आने वाला बैच है, तो वो लोग इंडस्ट्री में जाके क्या स्ट्रेटेजी या क्या चीज़ है जिसको अप्लाई करके वो अपना शौक़ भी पूरा करें फिल्म का, कहानी कहने का, और अच्छी कहानी कहने का, और वो उनके कॉर्पोरेट कल्चर और कॉर्पोरेट नुआंसेस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी ना हो। आपको ये बताना है, आपको जवाब किससे सुनना है? फजर भाई से शुरू करते हैं। अच्छा देखें, जहाँ तक ड्रामा इंडस्ट्री का ताल्लुक है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी चीज़ ना बिज़नेस मॉडल के बगैर काम नहीं करेगी, ठीक है, और वो फ्लरिश भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो देयर इज़ अ बिज़नेस मॉडल जो कि काम कर रहा है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, और उसमें कुछ चीज़ें हैं कि मिसाल के तौर पे आप अगर OTT पे जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, उसमें बहुत अलग अलग तरह के सिनेरियोज़ होते हैं, बहुत अलग अलग तरह की लोकेशंस पे शूट हुई भी होती है, बहुत यूँ कह लें कि बहुत ट्रिकी होता है, ठीक है। अब फिर होते 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 काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने बताया, शहर में आप शूट करने निकलें, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है, तो वो कहानियाँ ना ड्राइंग रूम तक महदूद होकर रह गई हैं, ठीक है। और वही 2 लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं, बिकॉज वो बहुत ईजी है, कैमरा लेके जाओ, लाइट लगाओ, शूट करो, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, आपके पास परमिशन है, आपने रेंट दिया हुआ है लोकेशन का, और वो उस बिज़नेस मॉडल में फ़िट होता है बहुत ईजीली, ठीक है। अब बात आती है कि मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, तो मैं इसका ज़्यादा मे भी शायद आंसर सही दे सकूँ। मैं जब आया था ड्रामा इंडस्ट्री में, तो आई ऑलरेडी हैड अ पोर्टफोलियो, मेरा काम लोग जानते थे, देखा हुआ था। मेरे पास जब स्क्रिप्ट आ रही थी, जब मेरी मर्ज़ी की नहीं आ रही थी, तो मैं 3 साल तक मैंने वेट किया, नहीं आई, नहीं पसंद आ रही थी, नहीं कर रहा था।
और जब करना शुरू किया, आप अगर मेरा रीसेंट प्रोजेक्ट अगर आप देखें, आपको मैं नहीं कहता, जो बाकी लोग देखने वाले वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा हट के लगता है, सही है, और दूसरे ड्रामाज से जिस तरह की चीज़ें और ड्रामाज में नहीं होती उस तरह की चीज़ें करी हैं। तो एक होता है कि यार आप तो या तो भाग के जो है दीवार से टक्कर मारो और गिर के मर दो, और एक होता है स्लो स्लो हैमर करो, ठीक है। तो अगर मैं एक घुसा हूँ ड्रामा इंडस्ट्री में, मेरे पीछे अगर 10 और घुसते हैं जो कि स्लो स्लो हैमर करेंगे, तो ही चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। हमें जो है ना ऐसा भी नहीं करना कि अगर एक बिजनेस मॉडल को आप क्रश करके रख दोगे और कहोगे नहीं मैंने तो अपने सारे अरमान पूरे निकालना है इस कहानी के ऊपर, आज भले प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाए, और प्रोड्यूसर इतना शरीफ निकला जो नुकसान करके बैठ भी गया, दोबारा ड्रामा नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो आपने वो कुछ मिडिल ग्राउंड इस तरह का निकालना है कि आप अपनी क्रिएटिव एस्पिरेशंस भी निकाल सकें वहाँ पर, और कुछ अच्छा बना सकें अपनी नज़र में, और साथ ही साथ आगे भी फ़ायदा हो। तो मुझे लगता है इन बिटवीन कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, ये सोचना, जब मैं एज अ ग्रेजुएट फिल्म ग्रेजुएट निकला था तो मैंने भी यही सोच रखा था कि यार ड्रामा इंडस्ट्री में नहीं जाना, मैं नहीं गया। अगले 7-8 साल तक ड्रामा इंडस्ट्री में मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। मुझे लगता है मैंने गलत किया, क्योंकि आपके यहाँ 2 इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में करंटली अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं, एक ड्रामा इंडस्ट्री है, एक कमर्शियल इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री अभी बन रही है, बनेगी में भी। इंडस्ट्री हम उसके उस चीज़ को कहते हैं जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे हुकूमत को, उतना रेवेन्यू जनरेट अभी फिल्म इंडस्ट्री नहीं करके दे रही है। उल्टा हुकूमत में भी शायद पैसे डाल रही है अभी फिल्म इंडस्ट्री बनाने के लिए। तो ये 2 इंडस्ट्री हैं, या तो इधर आप कमर्शियल इंडस्ट्री में आ जाएं। कमर्शियल इंडस्ट्री में आपको बजट्स अच्छे मिल जाते हैं, आप विजुअली अच्छी चीज़ें शूट कर पाते हैं, बट एंड ऑफ द डे आपका ना वो प्रोडक्ट आपका अपना नहीं होता, वो किसी एक ब्रांड का होता है। वो ब्रांड डिक्टेट करता है कि मुझे ऐसा शॉट चाहिए, ऐसा शॉट नहीं चाहिए। वहाँ पर आपकी सारी क्रिएटिविटी साइड में बैठ जाएगी, ठीक है। और फिर आपका जो अपना कहानी कहने का जो वो है शौक़ है या जो भी पैशन है, वो आप किधर लेके जाओगे। तो बिल्कुल किनारा कशी कर लेना कि नहीं ये इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता और हम नहीं जाएंगे, और बजट्स नहीं होते, कहानियाँ सेम वैसे ही हैं, और सारे फिल्म स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद कमर्शियल इंडस्ट्री का रुख करेंगे, तो ड्रामे ऐसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा कुछ भी। तो हमें ही कुछ ना कुछ करके स्लो हैमर करके चेंज करना होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। Anyone else has a question? Yes, sir. Thank you, ma'am. बहुत फ़र्क है the generation of directors that I belong to and you guys. It used to be years before मैं अपने किसी competitor कह लें या fellow colleague कहना चाहिए, contemporary कहना चाहिए, हम लोग मिल नहीं पाते थे because there would always be this wall of, you know, what have you done and what have I done, and you know the horrible nuances जिस पे हम equate करते हैं एक दूसरे को। अनफॉर्चुनेट बात है, ये अभी भी है इंडस्ट्री में। लेकिन उस सब चीज़ों के बावजूद मैं देखता हूँ कि तुम लोगों में you guys hang out, you guys call each other, which is great. I also hang out with a lot of you guys, even though there's a huge age difference there, but I kind of feel that I resonate with that. ये सब कुछ है तुम लोग के पास, इसके बावजूद जो मुझ जैसे शायद चंद लोगों का एक अरमान इच्छा रह गई कि कोई यूनियन बन जाए, कोई एका हो जाए कि नहीं करेंगे 12 घंटे से ज़्यादा काम, नहीं करेंगे, ये नहीं आएगी इससे कम फ़ी। ये ताहा या अली तुम लोग सबसे ज़्यादा एक्टिवली काम करो टीवीसीज़ में, एंड सलमान एज वेल। यार लगता है कि तुम लोग के सारे एके के बावजूद ये शायद हो पाएगा? एक क्वेश्चन है, हम्बल क्वेश्चन, सीरियसली। क्लियर कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये हम आपस में भी कर सकते थे, ये आप लोगों के लिए हुआ है सवाल यहाँ पे, ठीक है? बताओ। यूनियन इशू को ना हमें समझना होगा, और हमें अगेन रोबोट होता है जो ख्वाब नहीं देखता, इंसान के कंट्रोल में नहीं है ख्वाब देखना। तो ये वाला ख्वाब जो है ना, आपका थोड़ा सा जवाब आ गया इसमें, और थोड़ा सा हमारा जवाब आ गया कि हमारे भी ख्वाब है ना, उसको नहीं रोक पा रहे हम। और भाई
अब सिलसिला ऐसा है कि लोग आ रहे हैं काम करने के लिए और आ रहे हैं और आ रहे हैं और आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि ना बजट आप लोगों का मकसद ही नहीं है, मसला ही नहीं है, सोचें बस काम करना है कैसे करना है, और लाजमी सी बात है सब रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, ज़रूरत ईजाद की माँ है, सही है, बाकी तो दोस्त हैं। तो बाबर भाई मैं ब्लेम नहीं करूँगा सीनियर्स को कि थोड़ा सा ना पीछे से सिस्टम ख़राब है, क्योंकि मैं होता नहीं हूँ उनके ऊपर कमेंट करने वाला अपनी 7-8 साल के करियर में प्रोफेशनल। हम क्यों नहीं कर रहे, मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ आपके साथ। बात ऐसी है कि बाबर भाई की बात में ही जवाब है। हम ना सब दोस्त हैं और हम आइडियाज़ तक शेयर करने से नहीं डरते। ये चीज़ बिल्कुल है, इस चीज़ से आपको बाहर आना होगा। यूनिवर्सिटी लाइफ में हम थीसिस की स्टोरी नहीं सुनाते थे अपने ही क्लासमेट्स को जो 4 साल से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो दिन रात हम उनके साथ जाग रहे हैं, सो रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं कि यार छाप ना ले, या सीनियर को नहीं सुना रहे। मुझे ऐसा लगता था कि यार यही तो मौका है, अभी इज्जत उछल जाए जितनी उछलनी है, स्क्रीन पे उछलने से ज़्यादा। तो हम उससे पहले ना कि यार क्या ही होगा, हम पहले आइडियाज़ शेयर कर लेते हैं, कुछ हेल्प ले लेते हैं। ब्लॉक सब होते हैं यहाँ से किसी न किसी पॉइंट पे। फजर भाई हैं, सही है, मैं अगर गिनाता चलूँ ना आपको कि ताहा करीम कैसे आज इधर बैठा हुआ है, तो 4 पिलर्स हैं, एक गुम्बद है और कुछ फरिश्ते हैं। नाम ले लेता हूँ, ज़ूबिया अनवार, शजी हसन, अली अब्बास नकवी, सलार यूसुफजई, 4 पिलर्स, सही है। गुम्बद बताता हूँ, फिदा मोइन। फरिश्ते बताता हूँ, टीचर्स, जो किसी उसमें नहीं है, नज़र भी नहीं आते, कब आपकी हेल्प करते हैं। अब जब ये लोग आपके साथ हैं और आप काम करने निकले हैं, सलार यूसुफजई के साथ आप लोगों का सेशन हो गया है, फिदा मोइन के साथ मैं दुआ करूँगा हो, और बहुत सारे हों, बहुत काम का आदमी है। ये मुझसे हेल्प मांगेंगे, मैं मना नहीं कर सकता, सही है। मतलब दोस्तियों का लेवल फिल्मी हुआ है हमारा, थोड़ा लड़ मर जाएंगे तक आए हुए हैं, तो घंटे तो गिन ही नहीं पा रहे बाबर भाई, समझ रहे हैं। और सीनियर्स में भी हम ये देख रहे हैं, सर्टेन सिनेमाटोग्राफर्स हैं, बोलते हैं 12 घंटे काम करेंगे, लेकिन उनके कुछ लिस्ट के डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए खड़े हैं 18 घंटे, दूसरे के लिए 12 घंटे हैं। ये चीज़ ना फिर बैलेंस हो, फिर सबके लिए हो। अभी तो मसले बेशुमार हैं, हम उनमें नहीं जाते कि यार कल के बच्चे 25 साल हमें सिखाएंगे, हमें सिखाएंगे, हमें सिखाएंगे। नहीं, हम किसी को सिखाने नहीं हैं, हम तो खुद सीखने आए हैं। हम यही तो बोल रहे हैं, हम दरवाजे खटखटाते रहते हैं, असिस्ट करना है। आप लोग भी करते होंगे मैसेजेस, अली को, फजर को, सलमान को, मुझे भी आते हैं। देखिए हम सबको भी नहीं ले सकते, सही है, तो हम भी मतलब 10 लोगों के साथ जो खिचड़ी बनती है फिर फिल्म नहीं बनती। तो कहानी कुछ इसी तरह की है कि बाबर भाई यूनियन बनेगी, बनते बनते बनेगी, सही है। एटिकेट और एथिक्स जो है ना, वो मतलब सब में नहीं डाल सकते। मुझे लगता है बिल्कुल सही कह रहे हो। आज से 20 साल से कोशिशें हो रही हैं, जब मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर था उस वक्त भी कोशिशें होती थी, और जब किसी मुद्दे पे आ जाते थे तो एक इंसान उस मुद्दे को तोड़ देता था जाके। सब कहते थे यार 20 रुपए में काम करेंगे, इससे कम में नहीं करेंगे। पता चला एक आदमी जो उसी मीटिंग में बैठा हुआ तो 10 में करने को तैयार है, कर दिया उसने। और लेकिन मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाएंगे, क्रू करेगा, हम लोग करेंगे। हम क्रू है ना, डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, लाइट, स्पार्क, वी आर ऑल क्रू। हम सब क्रू हैं, हम करेंगे। मुझे लगता है क्रू से ही आएगा ये चेंज, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। माइक ले रहे हैं, माइक ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। Whenever we write stories या हम brainstorm कर रहे होते हैं ideas, so we are always told कि there are certain topics जिससे थोड़ा सा दूर रहना है, and rightfully so because of the society which we live in. So मेरा ये सवाल है कि आप लोग के दिल में अगर कोई ऐसी कोई कहानी है which is sensitive है थोड़ी, so how do you manage कि वो कहानी in its truest form आप बता सकें जैसे आपको बतानी है, without getting into trouble या किसी के sentiments hurt करना, like Murder Tongue was based on a very sensitive topic of the city. So yeah. Anyone, अली भाई, ताहा भाई, सलमान भाई, anyone. अली भाई है ना आपसे। अच्छा यार देखो, मर्डर टंग जो है ना वो
मेरा एक दोस्त राइटर है जिसका ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से, अम्मार ज़फ़र, उसने मुझे ये कहानी सुनाई थी 2015 में, और मैं उस वक्त थीसिस के करीब था, तो मैं स्टोरी सर्च कर रहा था, तो मेरी सबसे बातचीत चलती रहती थी। अली अब्बास से मेरी बातचीत होती थी, और इनसे साथ भी एक सेशन लगे स्टोरीज़ के ऊपर, और काफ़ी सारे आइडियाज़ आए बड़े मज़े के। तो फिर वन डे अम्मार से एक गपशप हुई, तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई ये वाली, और मैंने सुनी, और पता नहीं क्यों मैं उस वक्त थोड़ा सा मुझे हुआ कि यार पता नहीं अभी ये शायद फ़िल्म मुझे नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उसका टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव था, बट मुझे ऐसा लगा कि ये फ़िल्म ऐसी कि अगर ये सही तरह से नहीं बनी तो फिर फ़ायदा नहीं है। सो मैं शायद उसको थोड़े अलग स्केल पे देख रहा था, और क्योंकि थीसिस था तो थीसिस में मैं उस तरह मैनेज नहीं कर पा रहा था जो एक होना चाहिए। काफ़ी साल गुज़रे, कोई 2021 की बात है, मैंने दोबारा अम्मार से कहा यार मुझे वो स्टोरी दोबारा से शेयर करो। उसने मुझे स्टोरी शेयर की। तब वो टाइम था जब मैं कुछ कर सकता था, और मेरे पास सोर्सेज भी थे। उस वक्त एक टीम बन गई थी, मेरे साथ एक प्रोड्यूसर भी था। उस वक्त मैंने वो स्टोरी रीराइट करवाई, और इनफैक्ट मैंने वो स्टोरी खोल दी मज़ीद। वो 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म को मैं 18 मिनट पे ले गया, और मैंने उसमें से कुछ माइनस नहीं किया, बल्कि उल्टा मैंने प्लस कर दिया। लेकिन मुझे पता था कि मैं फ़िल्म किसके लिए बना रहा हूँ, और वो फिल्म जो है वो सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए बन रही थी। वो मुझे यहाँ एज सच कोई रिलीज़ पब्लिकली करने का मुझे कोई वो नहीं था, लेकिन मुझे था कि यार ये कहानी ऐसी है कि जिसका बनना बहुत ज़रूरी है। कल को रिलीज, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं करूँगा भी किसको नहीं रिलीज़, ऑनेस्टली बस मुझे वो बनानी थी, और मुझे बहुत अच्छे से बनानी थी। तो वो जब मैंने बना दी और वो फेस्टिवल में चली गई, उसको अवार्ड शॉर्ट जो भी मिल गए, फिर हमने यहाँ भी हमें कॉन्फिडेंस आया ना। होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार अच्छा फिल्म पे बैकलैश नहीं हो रहा, उल्टा लोग प्रेज कर रहे हैं। सो फिर वो स्क्रीन यहाँ भी की, अलग अलग शहरों में की, नॉर्मल पब्लिक में की, इंडस्ट्री में की, और कोई बैकलैश नहीं आया। इनफैक्ट लोगों ने बड़ा प्रेज़ किया कि यार आपने जिस टॉपिक पे लोग बात भी नहीं करते थे, आपने उसे फिल्म बना दी। तो उसका मकसद ही ये था। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी कहानी में आप कहानी से ज़्यादा लाइक आप उसको एज सच एज अ कहानी बताना चाह रहे हैं। अगर आप मदर टंग, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, अगर आप मदर टंग देखो ना, सो यार वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, वो कोई एजेंडा नहीं था उसमें कोई। ऑनेस्टली हमने किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन तब भी आपको पता सब है कि क्या हो रहा है उसमें। आपको सब पता होगा पूरी फिल्म में थ्रू आउट के क्यों है, किस बारे में बात हो रही है, क्या है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसमें हमने कुछ ऐसा किसी के ऊपर नाम या कोई स्टीरियोटाइपिंग कुछ नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने कहानी बतानी थी। सो अगर आप कहानी की तरह उसको बताओगे ना, चाहे वो किसी तरह का भी टॉपिक है, नो गो एरिया जो भी है, सो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि आपको कोई इशू आएगा। तब भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि उस पर इशू आएगा कि नहीं आएगा। स्टिल आप बताएं, कोई मसला नहीं है, आप अपनी कहानी बताएं, अपने तरीके से बनाएं उसको। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने जिस तरह बनाई वो एक अलग तरीका था मेरा, आप जिस तरह बनाना चाहते हो आप अपने तरीके से बनाओ। हर फिल्म मेकर का डिफरेंट स्टाइल है यार। सो मुझे ऐसा लगता है कोई इस तरह के टॉपिक्स होते तो मैं इनको डिफरेंट तरीके से बताता हूँ, ताकि मैं कहानी बताऊँ लेकिन वो सच कुछ प्रोपेगेंडा ना बने किसी के लिए। आप अपने तरीके से बताओ, कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है, बट बताएं, नहीं रखें। अगर वाकई कोई आप जैसे भी आप कह रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा आप दिल में आपकी एक स्टोरी है, बॉस बताएं आप। मे बी इट विल डू वंडर्स फॉर यू, मे बी, यू डोंट नो। देखिए अब अली ने ना आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया, ठीक है, उसने अपनी कहानी आपको सुना दी। आपका सवाल था कि हमें रोका जाता है, और शायद आपको जवाब चाहिए था कि रुकना या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ना अपने 2 टीचर्स का पहले रेफरेंस पॉइंट दे देता हूँ, और फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। मेरे एक टीचर हैं ज़ीशान अदर नलवाला, शायद अभी आए नहीं है, यहाँ पे होते हैं, आप लोगों के पास होते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि क्रिएटिव माइंड है और प्रैक्टिकल माइंड है। क्रिएटिव माइंड जब सोच रहा है ना, तो कमोड वहाँ लगा हुआ होगा, मसला नहीं है। प्रैक्टिकल माइंड का काम है ये सोचना कि इसमें करेंगे कैसे, तो जगह पे लाएगा वो। तो सोचते वक्त तो कैद ही नहीं है। दूसरी, फिर मेरे एक टीचर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई। अब देखें, बड़ा आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को ना, अपने ऊपर भारी नहीं करना है, हल्का करना है, सही है। बहुत भारी कर लेंगे ना, ये नहीं सोचने मसला हो जाएगा, हल्का कर लें। तो कुछ लोग हैं वो गालियाँ देते हैं ऐसे जैसे हेल्पिंग वर्ब है, ठक 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 आएगी बातों में। भाई उसकी नेचुरल लैंग्वेज का पार्ट है। आपको कोई हजम करता है गाली, कोई नहीं करता, समझ रहे हैं। मतलब हम तो खैर कराची में
इंटीरियर्स इनके लोग तो हमें कहते हैं कि हम इतने मीठे तरीके से देते हैं, गाँव में दे दो चीर दें, हम इतने मीठे तरीके से देते हैं कि कोई बुरा भी नहीं मानता। एक्सेप्टेंस ये नहीं कहूँगा अच्छी बात है, लेकिन आ गई ना, स्टोरी किसके लिए अच्छी है किसके लिए बुरी है ये देखने वाले ने सोचना है। आपने सुनानी है, आप सुना दो। हाँ, इतना ख्याल करो कि उससे ना किसी जनरेशन को, आपकी सोसाइटी को नुकसान ना हो। स्टोरी मुश्किल है, हार्ड हिटिंग है, लेकिन किसी की आँख खुलती है, कुछ बुरा होने से रोक सकते हो, उससे फ़ायदा हो सकता है, तो बताओ। अगर उससे नुकसान है ना तो ना बताना, ये है बस। We'll take the last question for the session now. अस्सलाम वालेकुम। ताहा भाई, अली भाई एंड फजल भाई, मेरा सवाल आप लोगों से। बेसिकली मैं मेमन फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर किसी बिजनेस में कॉन्कर करना है तो एक मजदूर के काम से लेके एक सीईओ तक के काम तक को आपको सबकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लाइक इतना कि आप अगर कभी कोई बंदा के बोले सर ये काम नहीं हो रहा, तो आप उसको बोल सको ये ऐसे होगा, करके दिखा सको। तो क्या हमें फॉर फिल्म मेकिंग, आई वॉन्ट टू बिकम अ डायरेक्टर, सही, मुझे स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक है, दैट्स द मेन रीज़न, ठीक है। So is it necessary that to learn everything from the scratch, like sound effects, like BGM, to make storyboards, to do like everything script से लेके post तक? ये मेरा सवाल है कि आप लोग मुझे पहले ताहा से शुरू कर दें। हम तो दे देंगे जवाब, इसका जवाब सलमान देगा, मेमन देगा। यार सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि सबसे पहले आपकी चीज़ है नॉलेज, आपको हर चीज़ की होनी चाहिए। नॉलेज अगर आपके पास हर चीज़ है तो आप हर किसी को अपने लिहाज से जज कर सकते हो, या आप स्ट्रेंथ्स देख सकते हो, कोई भी बंदा किस तरीके से कर रहा है, आप उनसे सीखो या आप खुद सीखो। क्योंकि एक डायरेक्टर को हर चीज़ आनी ज़रूरी नहीं है, बट हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मुझे शायद मैंने सिनेमेटोग्राफी भी करी है पहले, लेकिन मैं इतना अच्छा सिनेमेटोग्राफर नहीं हूँ, लेकिन सारी चीज़ें मुझे पता होंगी, ठीक है। आर्ट डायरेक्शन वाइज भी सारी चीज़ें पता होंगी। मुझे VFX का इंटरेस्ट है बहुत, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर पे कभी नहीं बैठता, ठीक है। मुझे पता है कि किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि कोई VFX वाला कुछ अगर कहे ये हो नहीं सकता, मैं उसको बोलूँ बॉस क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। आपको इस चीज़ का जवाब आना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हो सकता। नॉलेज इज़ द की, और नॉलेज अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज है हर डिपार्टमेंट की, ताकि आप हर चीज़ के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, पैसे बचेंगे, व्हाई नॉट। बट अगर नहीं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जिनसे भी काम करवा रहे हो तो आप उनसे एक क्वेश्चन कर सको और एक हेल्दी डिस्कशन हो सके, चाहे भले आपकी चीज़ बेहतर से बेहतर हो। अगर आपको कोई चीज़ का भी नहीं पता होगा और आप किसी नए बंदे से कोई नई चीज़ करने जा रहे हो, तो आपका डिस्कशन ही वैल्यूबल नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है। अच्छा खैर, ये मेमनों का केस नहीं है, मैं सिंधी हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। फिर एक टीचर को कोट कर देता हूँ। उस टीचर ने मैं सिखाया, अगर पूरी बात समझ नहीं आ रही ना तो 2 अच्छे वर्ड्स याद कर लो, वो दे दो, निकल जाओगे। चीटिंग आती है, कर लो, फिल्म में बहुत करनी होती है। आपको अगर काम नहीं भी आता ना, आप CEO ऐसे ही नहीं बनता। एक बैठे में हमारे पास, पूछें, ऐसे ही नहीं बन जाता, बड़ा टाइम लगता है। मजदूर तो बन जाएंगे आप। आपको अगर काम नहीं आता ना तो इतना सीख लो कि काम करवाना कैसे है। और डायरेक्टर बनना है ना तो एक्टिंग भी सीख लो, करो एक्टिंग, करवा लो। नहीं, आई एग्री विद सलमान कि आपको बेसिक नॉलेज हर चीज़ की एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, और सो दैट आपका क्या विजन है आप वो कम्युनिकेट ज़रूर कर सको। सही है, कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी है। ऑल्सो इफ़ यू डोंट नो बेसिक्स, अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वेक्टर फाइल और एक पिक्सेलेटेड फाइल में मुझे डिफरेंस नहीं पता, और मैं डिज़ाइनर से कुछ भी कह रहा हूँ, तो वो मे बी उस वक्त तो वो मेरी हाँ में हाँ मिला दे, लेकिन बाद में भी कहेगा यार इन लोगों को, मतलब वो फिर आप रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि सिनेमेटोग्राफी हो गई, साउंड डिज़ाइन हो गया, जितने भी क्या कहते हैं इसमें एरियाज़ हैं, उनका आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी ज़रूरी है, सो दैट वो आप कम्युनिकेशन अपनी टीम से बेहतर तरीके से कर सको। यस।
अच्छा, आई थिंक सबने बहुत अच्छे से बोल दिया। मैं सबसे जो लास्ट जुमला इसने बोला ना, बिल्कुल वही है कि आपने बेसिकली जो चीज़ें सीखनी है ना, वो कम्युनिकेशन के लिए सीखनी है। जब तक आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आएगी ना, तब तक आप अपनी बात सही से कन्वे नहीं कर पाएंगे। वैसे तो होते तब भी लोग हैं, बट ज़िंदगी आसान करने के लिए उसकी भी और अपनी भी आप ये चीज़ें सीख लें, ताकि आप अपने हर टीम के साथ बड़ी इजीली बात कर सकें उस लैंग्वेज। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, and can we give a big round of applause for all of the panelists and moderators? TCS sponsorship of this event demonstrates its commitment to supporting and empowering the next generation of leaders. Like the ones that we have on stage over here and all the aspiring ones that are here in the audience. It is now my pleasure to invite Mr. Qasim Awan to the stage to share a few words with the audience. हेलो सॉरी हेलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेडीज़ एंड जेंटलमैन इस्टीम पैनलिस्ट ख़वातीन और हज़रात देखिए मैं तो हूँ आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन यू और एक चाय की ब्रेक सो आई एम नॉट गोइंग टू इतना टाइम तो नहीं लूँगा और ना मैं अपनी कंपनी की कमर्शियल गोल्स उसके बारे में भी इतना काम नहीं करना चाहता बस हम एक 40 साल पुरानी कंपनी है तो जब हम रिसेंट अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे थे तो हमने कहा था कि जो हम अगले 40 साल के लिए जो ऑडियंस है उसके बारे में कैसे अचीव करें अपील करें तो इसलिए हमारा नेचुरल इंटरेस्ट ये था इस किस्म की ऑडियंस को रीच करने में लेकिन मोर देन दैट मैं आपको एक अगर कोई थोड़ी सी पर्सनल कहानी सुनाऊं तो पिछले साल मैं एक बहुत अकम्पलिश्ड CEO हैं इस मुल्क में शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लेडी और मुझे और तकरीबन 15-20 और बिज़नेस ओनर्स और CEO को इनवाइट किया था उन्होंने अपनी बोर्ड रूम में टू टॉक अबाउट हर जर्नी हर पर्सनल जर्नी प्रोफेशनल जर्नी क्या ऑब्स्टिकल्स उसने फेस किए she's quite famous कॉन्फ्रेंसेस पे भी बोलती हैं मीडिया में भी कभी कभार उनका जिक्र होता है तो शी वाज टॉकिंग टू अस अबाउट हर प्रोफेशनल जर्नी एंड उन्होंने कहा था कि उनकी एक स्लाइड थी उनकी उन पावर पॉइंट में जिसमें उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई थी अबाउट हर प्रेजेंस एट द पाकिस्तान US ट्रैक 2 डिप्लोमेसी डायलॉग जो ऑस्लो नॉर्वे में हुई थी तो एज़ यू आर अवेयर कि जब फॉरेन रिलेशंस में एक तो फॉरेन ऑफिस की बात होती है और एक ट्रैक 2 वाली बात होती है जो सिविलियन टू सिविलियन विच इज़ इवन मोर इन द बैकग्राउंड और वहाँ जो इस लेडी ने जो हमें कहानी सुनाई थी शी सेड दैट देयर वाज दिस अमेरिकन वुमन फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट ओवर देयर और उन्होंने कहा था कि Americans very much conduct their foreign policy in a way in which we have to somehow like the other country, we have to like the other party. और इस लेडी ने कहा था पाकिस्तानी डेलीगेशन तो गवर्नमेंट से भी काफ़ी मशहूर लोग थे तो पाकिस्तानी डेलीगेशन को इस अमेरिकन लेडी ने कहा था कि जो स्टेट डिपार्टमेंट शी सेड कि वी वर नो मूड टू टॉक टू यू गाइस और पाकिस्तान की बहुत बुरी इमेज है अमेरिका में कोई मूड ही नहीं था बट देयर वाज वन थिंग दैट मेड अस चेंज आवर माइंड तो हमारी डेलीगेशन ने कहा कि व्हाट इज़ दैट थिंग तो उसने कहा था कि वी वेंट एंड सॉ दैट मूवी मिस मार्वल विच इज़ बीन डायरेक्टेड बाय शर्मीन उबैद एंड उसके बाद जो हमने उस मूवी देखने के बाद हमने बोला कि चलो जी लेट्स गिव द पाकिस्तानीज़ अ चांस सो दिस इज़ व्हाई वी आर टॉकिंग टू यू टुडे तो देखिए बात यह कि आप लोग ऑब्वियसली यू गाइस वर टॉकिंग अबाउट योर चैलेंजेस करियर चैलेंजेस शायद कोई कभी कभार फंडिंग में इशू आए कोई क्रिएटिव ब्लॉक आए कि कोई आइडियाज़ नहीं आ रही है वट एवर तो आई वुड इनकरेज यू कि आप ज़्यादा फिक्र ना करें क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आई मीन ऑब्वियसली दिस ये जो इस लेडी ने जो कोट किया था उस बोर्ड रूम ने मुझे उसने इट रियली हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट TCS हैज़ एक्चुअली स्पॉन्सर्ड अ यूथ फिल्म इवेंट ऑफ दिस सॉर्ट और एंड उसके बाद आई फेल्ट लाइक इज़ इफ अच्छा ना कोई पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन था ना पाकिस्तान का कोई सियासतदान था
who had the power to convince these people in the State Department to talk to a Pakistani audience, but it was a film, you know, which had the power to do that. And just because the US and the Pakistani governments talk to each other, तो उसकी कितने ज़्यादा benefits होते हैं, और you know, because of the, so do not, my message is कि आपकी and मतलब whether business, whether politics, whether any arm of the state, आप लोगों की शायद उससे ज़्यादा power है to change minds, to change perceptions. और एक आपकी बाहर तो audience तो है आपकी, लेकिन एक तो आपकी audience तो है इस मुल्क की जो youth जो है, जो पिछले recent times में बहुत मायूस रही है, और even they need to be you know convinced about you know that about the positive aspects of the nation. I remember जब कोई बहुत साल पहले एक film आई थी जवानी फिर नहीं आनी, right? And I went, I saw that myself, and I think before that जो फिल्में आ रही थी पाकिस्तान में, they were of a very serious nature, such as ये खुदा के लिए और बोल, और यूँ थोड़ी सी serious nature की थी, and that was the first film that really showed, you know, just more like an action comedy film, you know, like an Actor-in-Law was another one of them. तो you know हमारी जो business community है, हम बहुत ज़्यादा perceptions को fight करते हैं, you know, for example, whether it is investment, bringing investment into stock market, bringing investment into startups, you know, पहली तो meeting, एक दो meetings तो ऐसी कोई foreign investor को convince करने ये लगता है कि the image of the country, that we are a normal country with normal people and with a normal business community, तो हमारी image जो है और overseas Pakistanis उसमें इतना ज़्यादा image deficit है, whether you're living in Canada, Dubai, US, you're always facing an image problem about Pakistan and the kind of you know perception that we have as a nation state, unfortunately, you know. तो हम इसी, and अगर आप global level पे देखें, we are living in a situation whereby you know वो एक आपका जो अमेरिका का सदर भी जो एक ज़माने में रहा है और शायद फिर से बने, he was a ex-reality TV star, right? तो उसकी स्किल्स क्या थी? उसकी स्किल्स ये थी, मतलब अक्सर कोई और हाई अचीवर या बिलियनर ऐसी किस्म के लोग बनते हैं अमेरिका के सदर, राइट? लेकिन एक ही बंदा था, ही न्यू हाउ टू प्ले टू द ऑडियंस. उसको ये पता था कि व्हेन टू थ्रो समवन अंडर द बस, व्हेन टू कजोल समवन, व्हेन टू मैनिपुलेट समवन, किसी के साथ कुट्टी कब करो, मतलब इट्स ऑल पार्ट ऑफ हिज थिएट्रिक्स, राइट? और शायद फिर से भी बन जाए, राइट? ग्लोबल लेवल पे अगर देखें, भारत जो भी करे कश्मीर में उसके सब गुनाह माफ़ होते हैं. 8-9 लाख की फौज उनकी कश्मीर, कोई बात नहीं करता उसके बारे में, जो उनके नाच गाना होता है, बॉलीवुड होता है, ये वो दिस एंड अदर, राइट? फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, चूँकि दूसरी साइड हैज़ ऑल द प्रोपेगेंडा, वो उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते. सो ये तो ग्लोबल लेवल का है. बट अगर आपको कभी कभार कोई, नॉट ओनली द पैनलिस्ट, लेकिन हमारे जो ऑडियंस में जो हैं यू नो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स, आई वुड एनकरेज यू टू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, और वो जो मुझे रिवील की थी इस लेडी CEO ने, कि द US स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट नॉट बिकॉज ऑफ द बिजनेसमैन, नॉट बिकॉज द पॉलिटिशियंस और एनी अदर आर्म ऑफ द स्टेट, दे स्पोक टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिकॉज दे हैड सीन अ फिल्म जिसमें पाकिस्तान का जिक्र है. So always remember this, you have the power to change a lot of things in the country, and I would encourage you to go forward. We would like Mr. Qasim to stay on stage to present each of our panelists a token of appreciation, starting with Salman Nurani. Next is next we would like to Taha Kareem. Fajr Raza.
Ali Suhail Jora. And last but not the least, Zobia Anwar.